morning, dear students. Dear students, in the previous class, we have discussed about the method of packaging of the DNA. We said that DNA, which is 2.2 meters long, is being packaged into the nucleus that is hardly 10⁻⁻⁶ in its size, in its dimension. So we can understand that the size of the nucleus is very small, and therefore the DNA gets packaged with the help of the histone proteins. Along with the histone proteins, it will be forming nucleosomes, which will further condense to form chromatin and chromatin fibers, which further condenses in presence of non-histone chromosomal proteins to form the last structures, that is chromosomes. So in this way, chromosomes are a very much condensed form of the DNA, and which can be observed during the process of cell division. Now next we are talking about the search of the genetic material. हमने डीएनए के बारे में बात कर ली है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का पैकेजिंग कैसा होता है, राइट। पर ये सारी चीजें तो बहुत बाद की बातें हैं। सबसे पहले ये पता ही नहीं था कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। क्या वो प्रोटीन है, क्या वो आरएनए है, क्या वो डीएनए है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स है। इट वाज नॉट नोन दैट व्हाट एक्चुअली दिस जेनेटिक मटेरियल in its chemical nature is. Now initially the researches were done by different researchers, right? जो सबसे पहले मेंडल जो थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे to prove something as genetic material, but he was not able to prove DNA as a genetic material, क्योंकि उस टाइम पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स के बारे में पता नहीं था. There were other researchers like Sutton and there was another researchers like Morgan, जिन्होंने भी ये सारी रिसर्चेस के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में सर्च और उनके बारे में कि what is getting inherited from parents to offsprings. There was a quest amongst the researchers. They were all trying to find out that what is that material which gets inherited. वो तो हमें आज पता है कि डीएनए इज द मटेरियल व्हिच गेट्स इनहेरिटेड, पर उस टाइम पे पता नहीं था. तो इसीलिए all those researchers were in a quest, were in a worry, were in a research to find out that what can be the genetic material. And for the search of the genetic material, the research which was done by the researcher known as Frederick Griffith was considered to be one of the hallmark to identify the genetic material. Now this research was done by Griffith and it was known as the transformation experiment, right? इसे कहा गया था transforming या transformation experiment. Transformation experiment या transforming experiment जो है, it was performed by Frederick Griffith. The name of the researcher was Frederick Griffith. क्या ये ढूंढना चाहते थे? ये ढूंढना चाहते थे कि what is actually the genetic material. क्या ऐसा है जो एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, राइट? हमने पहले डीएनए की बात कर ली क्योंकि हमें आज पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, पर पहले जब नहीं पता था तो सारे ही रिसर्चर्स अपने अपने तरह से एक्सपेरिमेंट करते थे टू फाइंड आउट कि क्रोमोसोम्स क्या है, जीन्स क्या है, डीएनए क्या है, एंड वेदर इट इज द जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म टू द नेक्स्ट सेल और नॉट. ऑल दिस रिसर्चेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ये परफॉर्म किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने. ही हैज परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ऑन Streptococcus pneumonia. The experiment was performed on Streptococcus pneumonia. उन्होंने Streptococcus pneumonia को ग्रो किया on a culture plate. What did he do in his experiment? Streptococcus pneumonia जो बैक्टीरिया है उसे उन्होंने कल्चर प्लेट पे ग्रो किया. कल्चर प्लेट पे ग्रो करने पर
he observed two types of colonies. बैक्टीरिया जो होता है वो जब डिवाइड होता है तो क्या करता है, अपनी कॉलोनीज बनाता है. तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो तरह की कॉलोनीज बन रही थी. समवेयर स्मूथ कॉलोनीज एंड समवेयर रफ कॉलोनीज. जो स्मूथ कॉलोनीज थी वो स्मूथ और शाइनी इसीलिए थी क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कई ऐसे होंगे जो स्मूथ कॉलोनीज बना रहे थे और कई ऐसे स्ट्रेन्स थे जो रफ कॉलोनी बना रहे थे. तो स्मूथ कॉलोनी बनाने वाले जो स्ट्रेन थे, दे हैड अ लेयर ऑफ म्यूकस कोटिंग और यू कैन से पॉलीसैकेराइड, राइट. सो दे हैड अ पॉलीसैकेराइड कोट प्रेजेंट, राइट. और पॉलीसैकेराइड कोटिंग होने की वजह से, म्यूकस कोटिंग होने की वजह से उनकी कॉलोनीज जो थी वो स्मूथ थी. और जो रफ कॉलोनीज वाले थे उनमें एब्सेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड कोट. तो जिनमें पॉलीसैकेराइड कोट बन रही थी, मतलब जो स्मूथ कॉलोनीज वाले, जो स्मूथ कॉलोनी बनाने वाले बैक्टीरिया थे, they had a very specialized property of being virulent. ये कैसे थे? They were virulent. Virulent का मतलब होता है disease causing. They were disease causing. जबकि जिनमें ये पॉलीसैकेराइड कोट नहीं थी, जिनकी रफ कॉलोनीज थी, they were avirulent. मतलब they do not have an ability to cause the disease. इसीलिए इनको नाम दे दिया आर स्ट्रेन क्योंकि रफ कॉलोनीज बनाता है, और इनको नाम दे दिया एस स्ट्रेन क्योंकि ये स्मूथ कॉलोनीज बनाता है, राइट. आप समझिए हम क्या ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं कि पहले ये नहीं पता था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. इसीलिए सारे रिसर्चर्स जो थे, सुटॉन है, मॉर्गन है, मेंडल है, वो अपनी अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे इनहेरिटेंस को जानने के लिए. तो उन्हीं के टाइम में 1928 में, आई एम मेंशनिंग द ईयर 1928 में, ये जो रिसर्च 1926 तक ये पता चल गया था कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है और क्रोमोसोम्स के साथ एसोसिएटेड है. 1926 तक सबने अपनी रिसर्च नैरो करके ये कंक्लूजन पे तो आ ही गए थे कि क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मे बी इनहेरिटेंस, पर एग्जैक्टली अभी भी पता नहीं था. 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. उन्होंने इस बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पे ग्रो किया तो देखा कि यहाँ पे दो तरह के कॉलोनीज बन रहे हैं. कई कॉलोनीज स्मूथ है और कई कॉलोनीज रफ है. जो स्मूथ कॉलोनीज थे उनका मतलब कि उनके सरफेस पे एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड, मतलब पॉलीसैकेराइड का एक लेयर था, जबकि इनके पास वो लेयर नहीं था, जिसकी वजह से दोनों की कॉलोनीज अलग थी. तो जो स्मूथ कॉलोनीज बना रहे हैं वो सारे वायरुलेंट है. मतलब अगर स्मूथ कॉलोनी वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया किसी ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट किया जाए तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा ड्यू टू डेवलपिंग द डिसीज निमोनिया. निमोनिया की वजह से वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, वायरुलेंट, डिसीज कॉज करता है. जबकि अगर किसी में रफ कॉलोनी वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इंजेक्ट किया जाए तो वो मरता नहीं है क्योंकि वो कैसा है, एवायरुलेंट. इसीलिए ऐसा कंक्लूड हुआ कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसकी दो तरह के स्ट्रेन्स हैं, कई एस स्ट्रेन्स है और कई आर स्ट्रेन है. तो अब उसने एक्सपेरिमेंट कैसे फर्दर कंटिन्यू किया कि उन्होंने सबसे पहले एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इन द माइस. एस स्ट्रेन को क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया. एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करने से क्या होगा, तो ऑब्वियसली एस स्ट्रेन कैसी है, वायरुलेंट, डिसीज कॉजिंग है, तो माइस इज गोइंग टू डाई. माइस डाइज, राइट. जो माइस होता है, राइट, रैट, उसमें उन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया. थोड़े ही दिनों में देखने को मिला दैट माइस इज डाइंग ड्यू टू द निमोनिया, राइट. फिर उन्होंने सिमिलरली आर स्ट्रेन लिया और इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इन द माइस.
अब आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया है, तो आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करने से क्या हुआ, माइस इज गोइंग टू लिव ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि आर स्ट्रेन कैसा है, ए वायरुलेंट है, उससे डिसीज होने नहीं वाला, निमोनिया होने नहीं वाला, तो माइस के मरने के कोई चांसेस नहीं है। थर्ड टाइम उन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन दिया। हीट किल्ड एस्ट्रेन मतलब जो बैक्टीरिया है, राइट, उसको हीट किल कर दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब हीट किल कर देने के बाद अगर इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्टेड इन माइस, आफ्टर हीट किलिंग इफ यू इंजेक्ट ऑब्वियसली माइस विल लिव। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का जो वायरुलेंस है वो तो मर जाएगा, वो दैट इज गोइंग टू बी किल्ड बिकॉज आपने बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया है, राइट। तो ऑब्वियसली माइस इज going to live if heat killed estrine is injected. But if heat killed S strain के साथ साथ R strain इंजेक्ट किया प्लस R strain, live R strain injected in the mice, then what should happen? What should happen ideally? हीट किल्ड एस्ट्रेन है मतलब वायरुलेंस नहीं रहेगा, लाइव आर स्ट्रेन है वो तो ऑलरेडी वायरुलेंट है, तो माइस शुड लिव, बट ही ऑब्जर्व्ड दैट मेनी माइस डाइड, ही ऑब्जर्व्ड दैट मेनी माइस डाइड। तो अब ये कैसे हो सकता है कि हीट किल्ड एस्ट्रेन है जो ऑलरेडी मर चुके हैं और यहाँ पे लाइव आर है जो ऑलरेडी ए वायरुलेंट है, उनके माइस में इंजेक्ट करने से हाउ कैन अ माइस डाई? तो फिर यहां पे उन्होंने कहा दैट समथिंग was transformed, something was transformed from heat killed S strain into R strain, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो इनिशियली ए वायरुलेंट थी अब वो क्या हो चुकी है, वायरुलेंट। उन्होंने ऐसा कहा कि हीट किल्ड एस्ट्रेन में से कुछ ऐसा है जो किसमें एंटर हुआ होगा, आर स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन में एंटर होने पर आर स्ट्रेन की नेचुरल जो ए वायरुलेंस की प्रॉपर्टी थी वो चेंज होके कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, वायरुलेंस की, और इसीलिए शायद माइस गॉट किल्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कह रही हूं मैं यहाँ पे कि ऐसा कोई मटेरियल था जो ट्रांसफर हुआ था किसमें से, हीट किल्ड एस में से, किसमें ट्रांसफर हुआ, आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है वो ए वायरुलेंट में से किसमें चेंज हो गई, वायरुलेंट में। तो यही रिसर्च, यही क्या था मटेरियल, ये अभी भी ग्रिफिथ को पता नहीं चला था कि समथिंग इज ट्रांसफर्ड, बट व्हाट इज ट्रांसफर्ड दैट वाज स्टिल अननोन, right? So here came the role of 3 other researchers जिन्होंने बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट किया था। बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट was performed by 3 researchers, Avery, MacLeod and McCarthy। ऐसे 3 रिसर्चर्स थे, एवरी, मैक्लोड एंड मैककार्टी, जिन्होंने बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये प्रूफ करने के लिए कि एक्चुअली क्या ट्रांसफर हुआ होगा। तो उन्होंने ये प्रूफ करने के लिए, इसके पहले सबने ऐसा मान लिया था कि प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं एस स्ट्रेन में से आर स्ट्रेन में, और प्रोटीन्स एंटर होने की वजह से शायद ये जो एस स्ट्रेन मतलब आर स्ट्रेन है वो वायरुलेंट हो गई है और माइस जो है दे गॉट किल्ड। तो पहले ऐसा माना था कि प्रोटीन, पर उन्होंने क्या किया कि 4 टेस्ट ट्यूब्स ले ली। व्हाट वाज डन, 4 टेस्ट ट्यूब्स, राइट, और चारों टेस्ट ट्यूब्स जो थे उसमें से एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि हीट किल्ड एस्ट्रेन में से प्रोटीन लिए, दूसरे में प्रोटीन्स ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, राइट। दूसरे में उन्होंने क्या किया, एक में प्रोटीन ले लिया, एक में उन्होंने आरएनए ले लिया, आरएनए ऑफ हीट किल्ड एस्ट्रेन। थर्ड में उन्होंने डीएनए ले लिया,
फ्रॉम द हीट किल्ड एस्ट्रेन, और फोर्थ में उन्होंने डीएनएज एंजाइम लिया। क्या लिया? डीएनएज एंजाइम फ्रॉम द हीट किल्ड, सब कुछ हीट किल्ड एस्ट्रेन में से लिया, और सब में एंटर किया क्या? आर स्ट्रेन। सब में एंटर मतलब सब में क्या डाल दिया? लाइव आर स्ट्रेन डाल दिया। बट सॉरी, उन्होंने क्या किया? सब में इंट्रोड्यूस तो आर स्ट्रेन किया। क्या किया पहले देखिए, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में 4 टेस्ट ट्यूब्स ली। हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पहली टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आरएनए, तीसरी टेस्ट ट्यूब में हीट किल्ड में से डीएनए और चौथी में डीएनएज, ये चारों चीजें उन्होंने अंदर इंट्रोड्यूस कर दी। उसके बाद उन्होंने सब में आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया जो है वो डाल दिया। अब आर स्ट्रेन जो है वो लाइव है, और हीट किल्ड एस्ट्रेन में से क्या लिया? एक में प्रोटीन, एक में आरएनए, एक में डीएनए और एक में डीएनए करके उसके सारे कंपोनेंट्स डाल दिए। अब जिसमें प्रोटीन डाला था उसमें आर स्ट्रेन में कोई भी चेंज आया नहीं, जिसमें आरएनए डाला था उसमें आर स्ट्रेन में कोई चेंज आया नहीं, पर जिसमें डीएनए डाला था उसमें क्या हुआ कि कई आर मतलब रफ कॉलोनीज वाले बैक्टीरिया थे और कई स्मूथ कॉलोनीज वाले बैक्टीरिया। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि जब हमने सिर्फ आर स्ट्रेन डाला है तो स्मूथ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया तो कैसे ग्रो हो सकते हैं? जब हमने आर स्ट्रेन इंट्रोड्यूस किया तो उन्हें पता चल गया कि इट वाज डीएनए व्हिच गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द आर स्ट्रेन, मतलब कई आर स्ट्रेन जो है उनमें क्या एंटर हो चुका होगा? डीएनए फ्रॉम द एस स्ट्रेन, और उसी की वजह से कई आर टाइप के बैक्टीरिया थे और कई एस टाइप के बैक्टीरिया थे। तो एस टाइप के बैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हीट के जो बैक्टीरिया था उसका डीएनए अभी भी इंटैक्ट था, और वो डीएनए किसमें एंटर हुआ होगा? आर स्ट्रेन में। इसीलिए कई आर स्ट्रेन जो थे दे चेंज्ड इनटू द एस, राइट। पर जब उन्होंने वापस डीएनएज लिया, तो डीएनएज तो एंजाइम है जो डीएनए को क्लीव कर देता है, तो जब उन्होंने डीएनएज लिया तो फिर वहां पे वापस क्या हुआ? देयर वाज ओनली R strain, which shows that it was DNA which got transformed the R into the S, मतलब A वायरुलेंट से उनकी प्रॉपर्टी वायरुलेंट में कन्वर्ट करने वाला मटेरियल जो रिस्पॉन्सिबल था दैट वाज डीएनए, और यही प्रूव किया था एवरे, मैक्लियोड और मैककार्टी ने। So that was the whole transformation experiment by the Griffith, right? It is very important to understand the experiment. This is one such experiment. In the next lecture we will begin with another such experiment which further proves that yes, DNA is the only genetic material. ये एक एक्सपेरिमेंट से तो प्रूफ हो ही रहा है, पर ऐसा दूसरा भी एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूफ करता है कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल ends at what? Ends at DNA.